Good afternoon, class. This is Theory of Economic Growth, course number 302, taken by Sakshi Gupta. As far as the Unit 1 is concerned, we had discussed about the concept and importance of economic growth, the stylized facts of economic growth, sources of economic growth, and then comes the classical theory of economic growth that I had given you in homework, जो कि मैंने आपको home task में दिया था, and in which I had discussed with you the two diagrammatic versions of Ricardian theory. Then comes the Harrodian model of growth, and then comes the Domerian model of growth that we had discussed too. Now comes the relevance of the Harrod-Dommer model to contemporary developing economies or countries. So this is your homework. This I won't do with you. That relevance of Harrod-Dommer model to contemporary developing economies में क्या relevance है ये आपको खुद करना है. What I'll discuss today is the comparison between Harrod and Dommer model, in which you have to discuss the similarities as well as the dissimilarities, and then comes the Marxian model of growth and collapse, in which you have to see that how Marxian model leads to growth and collapse in an economy, or you can say economic growth. So today we are going to discuss, as I had told you, that comparison between Harrod and Dommer model and Marxian model, its growth and collapse. So let's start with the Harrod and Dommer. Now in comparison we have to discuss similarities as well as dissimilarities. So firstly we will start with the similarities. Okay, so similarities की जहाँ तक बात है आपके पास, so what you have to taken here is similarities में आपके पास क्या क्या point आ जाते हैं. Number one is that both Harrod as well as Dommer are against Keynes के against हो गए थे एक assumption को लेके, that is there must be a dynamic element that should be introduced. उन्होंने कहा कि अगर हमें growth model की बात करनी है तो there must be a dynamic element. तो एक dynamic element यहाँ पे होना बहुत ही important है. And what is that dynamic element? In Harrodian model that dynamic element is your nu, and in Domerian model that element is your what you can call it as beta. ठीक है, तो ये दो आपके कौन से हैं, वो डायनामिक एलिमेंट्स हैं जिनको आपने क्या किया, अपने मॉडल के अंदर इंट्रोड्यूस किया. जबकि अगर आप कीन्स की बात करें, कीन्स की थ्योरी की बात करें, तो उसमें कोई भी उन्होंने डायनामिक एलिमेंट को अपने मॉडल में इंट्रोड्यूस नहीं किया है. ठीक है, तो एक अजम्पशन ये ऐसी थी जो कीन्स के अगेंस्ट जाके इन दोनों ने ली है. तो इन दोनों के बीच में लेकिन ये क्या है, सिमिलैरिटी है, बिकॉज दोनों ने एक डायनामिक एलिमेंट को अपने अपने मॉडल में इनकॉर्पोरेट किया है. सो देन कम्स दैट both are concerned with the Keynesian difficulties. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब हम Keynesian difficulties की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी limitations रही हैं कीन्स की, दोनों ने उसके ऊपर काम किया है. एंड इसीलिए जो हैरड का मॉडल है उसको तो आपने स्टडी किया था इन इंट्रोडक्शन. आई हैव टोल्ड यू दैट हैज बीन नोन एज द एक्सटेंशन ऑफ द Keynesian मॉडल इन द लॉन्ग रन. क्यों, क्योंकि जो आपके शॉर्ट रन में कुछ कमियां रह गई थी कीन्स के मॉडल में, हैरड एंड डॉमर ने उन्हीं को इंप्रूव करने की कोशिश की है. ठीक है, देन कम्स अलो एंटरप्रेन्योरियल मिस्टेक्स. इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा दैट एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, इज अ ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन इज एरर. वी नो कि इंसान से गलती होती ही होती है, तो इसीलिए अगर एंटरप्रेन्योरल से कोई गलतियां हो जाएं तो उनको अलो किया है कि कोई बात नहीं, वी विल अंडरटेक आवर मॉडल विद रिस्पेक्ट टू दोज मिस्टेक्स ऑल्सो. हम उन मिस्टेक्स को भी कंसिडर करके अपने मॉडल को जो है क्या करेंगे, डेवलप करेंगे. देन कम्स द पोस्टुलेट ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो. दोनों ही मॉडल्स में आपने देखा कि कैपिटल आउटपुट रेशियो की पोस्टुलेट है. एंड व्हाट इज हैपनिंग, कैपिटल आउटपुट की जो पोस्टुलेट है उसमें क्या किया गया है कि जो कैपिटल आउटपुट की जो इन्होंने पोस्टुलेट यू कैन से कि जो इन्होंने ये नेसेसरी कंडीशन ली है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है दैट मस्ट बी इन अ मॉडल, वो मॉडल में होना चाहिए. एंड वो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी फिक्स. वो कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए. देन कम्स दैट दोनों ने क्या बात की है, एक्सपोनेंशियल इक्विलिब्रियम की बात की है. मतलब दोनों ने कहा है कि एक्सपोनेंशियल इक्विलिब्रियम रहेगा. एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है दैट समथिंग दैट हैज बीन गोइंग टू बी इन अ कांस्टेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो कांस्टेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है एंड किसी भी लेवल पे आके वो जीरो नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्विलिब्रियम. मींस दैट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1, वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगी एंड इट विल नेवर बी जीरो, वो कभी भी जीरो जो है वो नहीं होगी. एंड वो जो कांस्टेंट लेवल है उस कांस्टेंट लेवल से जो है आपकी इनकम जो है वो ग्रो कर रही है. ठीक है, तो आपकी इनकम किससे ग्रो कर रही है, एक कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रही है. एंड दैट कांस्टेंट रेट इज यू कैन से ग्रोइंग विद एन एंड लीडिंग टूवर्ड्स एन एक्सपोनेंशियल इक्विलिब्रियम. और वो क्या कर रहा है, एक एक्सपोनेंशियल इक्विलिब्रियम पाथ जो है वो डिटरमाइन कर रहा है. ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज कि जो इक्विलिब्रियम रेट है दैट इज अनस्टेबल. अब अगर आप हैरड की बात करें तो हैरड के मॉडल में जो आपकी सेकंड थ्योरम है दैट हैज बीन टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम रेट दैट इज इनस्टेबल, जो कि इनस्टेबल था. ठीक है, तो अब
तो अगर जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो इनस्टेबल हो जाएगा, जिसको हमने इंस्टेबिलिटी थ्योरम कहा था, तो हमारी ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो अनस्टेबल, वो भी अनस्टेबल हो जाएगी. In Domerian model also there is a corollary that we hadn't discussed because that was not in your syllabi. आपके syllabus में नहीं था, so we hadn't discussed that. But actually what is happening in Harrodian model also there is a growth rate. एक growth rate है आपके पास, that is R, जिसको आप R के साथ denote करते हैं, and this is the growth rate of investment. ये investment का वो growth rate है which is you can say not equals to your S beta, जो आपके S beta के बराबर नहीं है. S beta क्या था आपका, rate of growth of investment जो है, what is that, that is equals to in Domerian model, अगर आपको याद हो तो वो क्या है आपके पास, that is S beta. तो इसमें जो मॉडल की जो क्रॉलरी है वो ये कहती है कि जब आपके पास कोई इंटरेस्ट रेट ऐसा है विच इज नॉट इक्वल्स टू योर एस बीटा बट विच इज इक्वल्स टू आर, जो कि एस बीटा नहीं है बल्कि कुछ आर है, in that case that R, what is that R, that is the unstable ग्रोथ रेट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो वही R जो है वो अनस्टेबल ग्रोथ की तरफ जो है पॉइंट आउट करता है, एंड दैट विल लीड टू एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. और वो जो है क्या बताएगा, दैट देयर इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. ठीक है, देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बोथ द मॉडल्स एज्यूम प्राइस लेवल एंड फॉरेन ट्रेड एब्सेंस. अब इन्होंने क्या किया, दोनों मॉडल्स में आपने एग्जाम्पशंस में पढ़ा है कि जो प्राइस लेवल है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा, एंड जो फॉरेन ट्रेड है दैट वुड बी एब्सेंस, वो एब्सेंस रहेगा. मींस योर इकोनॉमी जो है, हाउ इज द योर इकोनॉमी, इट इज नॉट एन ओपन इकोनॉमी, दिस इज एन क्लोज्ड इकोनॉमी, कि आपकी जो इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमी नहीं है बल्कि वो कैसी इकोनॉमी है, वो क्लोज्ड इकोनॉमी, बिकॉज फॉरेन ट्रेड इज एब्सेंस, दैट मींस योर इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड वन. ठीक है, so these are the points of similarities. Now we will move on to the points of dissimilarities. So as far as the dissimilarities are considered, first of all we will study the points of Harrodian model and then we will discuss the points of Domerian model. Now what Harrod assumed a saving function with a lag period. ठीक है, Harrod ने क्या assume किया है, जो Harrod का saving function है, there is a lag, उसमें lag है. lag कैसे है, क्योंकि आपको याद होगा हमने फिफ्थ assumption में पढ़ा है that savings is equals to योर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और साथ में YT माइनस 1. ठीक है, दैट इज द इनकम ऑफ द इनिशियल लेवल. करंट पीरियड की सेविंग निकाल रहे हैं, टी लेवल की, ST को कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन जो वैल्यू हम ले रहे हैं उसमें इनकम की कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, दैट वाज द प्रीवियस ईयर वैल्यू ऑफ योर इनकम. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, देयर वाज अ लैग. यहाँ पे क्या आ गया, लैग आ गया, क्योंकि जो टी है वो किसके बराबर आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू, वो आपको किसके बराबर कैलकुलेट कर रहे हैं, आप t माइनस 1 पीरियड की वैल्यू से आप t की वैल्यू जो है वो क्या कर रहे हैं, वो कैलकुलेट करें. तो जब भी कभी ऐसा होगा, सो व्हाट वी विल कॉल इट एज लैग पीरियड, हम उसको लैग कहेंगे. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो है इसका, दैट इज तो कैपिटल आउटपुट रेशियो है, वो कैपिटल आउटपुट रेशियो कैसा रहेगा, दैट हैज बीन एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट फंक्शन. अब क्या बोला इन्होंने कि यहाँ पे जो हैरड के मॉडल में हमने जो एक अपना एलिमेंट जो डिटरमाइन करने के लिए लगाया है इंडिविजुअली अपनी मर्जी से, जो कीन्स के एग्जाम्पशन को अगेंस्ट करके हमने पॉइंट लिया है, जो एलिमेंट हमने लिया है दैट वाज न्यू. वो क्या है, हैरड के मॉडल में वो न्यू है, एंड इट हैज बीन एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट फंक्शन. और अगर आपको याद हो आपकी सिक्स्थ एग्जाम्पशन में क्या है, जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन IT को जब आप डिफाइन करते हैं, सो IT इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट, IT इज इक्वल्स टू योर न्यू टाइम्स, IT किसके बराबर है, IT इज इक्वल्स टू न्यू टाइम्स योर चेंज इन इनकम, इसी के बराबर है ना. चेंज इन इनकम मींस YT माइनस 1 के बराबर, तो उसी के बराबर है. अगर आप सिक्स एग्जाम्पशन को देखें तो न्यू टाइम्स चेंज इन इनकम की जब आप बात करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, वो किसके बराबर है, वो आपके पास इन्वेस्टमेंट के बराबर है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट फंक्शन. तो इसीलिए न्यू जो है व्हाट इज दैट, वो क्या बन जाएगा, वो आपका इन्वेस्टमेंट का फंक्शन जो है क्या हो जाएगा, बन जाएगा. तो यही पॉइंट यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा है सेकंड पॉइंट. नाउ कम्स थर्ड पॉइंट. अब थर्ड पॉइंट में ये कहा जाता है दैट हाउ वी हैव टू डिटरमाइन दैट न्यू तो ले लिया हमने बता दिया कि वो एसोसिएटेड है, लिंक्ड है इन्वेस्टमेंट फंक्शन के साथ, इन्वेस्टमेंट फंक्शन में वी आर यूजिंग इट, बट हाउ वी आर एबल टू डिटरमाइन इट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हम इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेटेड है, तो दैट मींस इसको डिटरमाइन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है दैट इज द एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर. वो क्या है, वो एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर है, कि एंटरप्रेन्योरियल का क्या, कि जो एक एंटरप्रेन्योर है उसका क्या बिहेवियर है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, वो कैसे इन्वेस्टमेंट चाहता है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट योर न्यू वैल्यू विल बी डिटरमाइंड, एंड न्यू वैल्यू को आपको इस तरह से अपने कैपिटल स्टॉक में से निकालना है. ठीक है, कहां से निकालना है, कैपिटल स्टॉक में से निकालना है, उधर से एडजस्ट करना है, एंड इन सच अ वे, इस तरह से करना है कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं दैट वुड बी मैक्सिमाइज, कि आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो मैक्सिमाइज हो जाएं. ठीक है, अगर आपके प्रॉफिट्स को आप मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे
then you won't be able to determine this. तो आप न्यू को कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास कुछ मोटिव ही नहीं है कि किस बेसिस पे आपको न्यू को डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब दूसरी साइड डॉमरियन मॉडल को देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, देयर इज अ लैग इन हेरोडियन मॉडल, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डॉमरियन मॉडल देयर इज नो लैग। तो यहाँ पे कोई भी लॉग जो लैग है वो नहीं है। क्यों लैग नहीं है? बिकॉज यहाँ पे यू नो कि आपके जो सेविंग्स रेट है, ठीक है, सेविंग्स जब आप टी टाइम पीरियड की सेविंग्स निकालते हो, सो दैट इज इक्वल्स टू योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ एस इनटू क्या हो जाता है आपके पास, वाई टी आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास सॉरी सफरिंग फ्रॉम बैड थॉट, सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, टी ही आ जाता है। सो देयर विल बी नो लैग इन दिस पीरियड, देयर विल बी नो लैग। तो डॉमिनेंट मॉडल में आपके पास कोई भी लैग जो है वो नहीं आएगा। देन सेकंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है दैट द आउटपुट कैपिटल रेशियो इज बीटा। अब वहां पे क्या था, अगर आप हेरोडियन मॉडल की बात करें, देयर इज अ कैपिटल आउटपुट रेशियो दैट इज न्यू, एंड डॉमर के मॉडल में आउटपुट कैपिटल रेशियो आ गया, ठीक है। डॉमर ने क्या लिया है, कैपिटल आउटपुट रेशियो नहीं लिया, आउटपुट कैपिटल रेशियो लिया है, एंड आउटपुट कैपिटल रेशियो जो है दैट इज इक्वल्स टू बीटा, वो बीटा लिया है। एंड बीटा इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट, अगर आप अपने मॉडल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बीटा जो है वो 1 अपॉन न्यू के बराबर है। तो 1 अपॉन न्यू को अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू न्यू हो जाएगा। तो 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू न्यू का क्या मतलब होगा, जब इस तरह की वैल्यू हो गई 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू न्यू हो गया, तो ये जो कैपिटल है दैट वुड कम ओवर हियर। तो कैपिटल जो है वो पहले आ जाएगा एंड आउटपुट जो है वो बाद में आ जाएगा, तो वो बन जाएगा कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो मतलब दोनों ही केसेस में आपके पास जो आपने एक अपने से एक्सटर्नली जो आपने एक्सप्लिसिटली एक एलिमेंट को यहाँ पे डाला है अपने मॉडल में एक्सटर्नली, दैट इज द सेम वेरिएबल, वो सेम वेरिएबल है एक, बट उसकी रिप्रेजेंटेशन अलग है। एक में हम उसको न्यू कह रहे हैं, दूसरे में हम उसको बीटा कह रहे हैं, ठीक है। एंड हियर इट इज रिलेटेड विद व्हाट, जैसे यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन के साथ रिलेटेड है हेरोडियन मॉडल में, वही डॉमरियन मॉडल में इट इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि अगर आपको अपनी जो प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन है वो याद होगी, दैट इज इक्वल्स टू pt इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स kt। वो क्या है, pt इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स kt। तो जब आप pt इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स kt लिखते हैं तो व्हाट इज योर pt, pt क्या है आपका, pt इज एक्चुअली योर व्हाट, दिस इज योर प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, ठीक है। एंड वहीं जब आप बात करेंगे किसकी, आउटपुट कैपिटल रेशियो की, दैट इज इक्वल्स टू बीटा, वो बीटा वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास के टी। व्हाट इज के टी, के टी इज योर चेंज इन कैपिटल स्टॉक, के टी इज एक्चुअली कैपिटल स्टॉक, ठीक है। तो ये आ जाएगा के टी आपके पास, ठीक है। तो ये इस तरह का फंक्शन आपके पास पड़ेगा। तो यहाँ से यू कैन सी कि बीटा वैल्यू जो है दैट विल बी एसोसिएटेड विद योर प्रोडक्शन फंक्शन, वो प्रोडक्शन फंक्शन से एसोसिएटेड है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट में क्या है यहाँ पे, दैट बीटा इज डिटरमाइंड बाय टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। अब बीटा किससे हम अंडरस्टैंड करेंगे, बीटा को कहाँ से डिटरमाइन करेंगे, इफ वी वांट टू डिटरमाइन बीटा वैल्यू, तो बीटा वैल्यू कहाँ से डिटरमाइन होगी हमारी, दैट विल बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ योर technological factors. What is technological factors? Technological factors means those factors, those techniques that you are using in your production function. जो भी अपने production function में आप टेक्निक यूज कर रहे हो, that टेक्निक जो है will determine your output capital ratio. वही टेक्निक जो है आपके आउटपुट कैपिटल रेशियो को डिटरमाइन करेगी, दैट मीन्स आपके बीटा वैल्यू को डिटरमाइन करेगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज ऑल अबाउट योर कंपैरिजन इन विच यू हैड स्टडीड अबाउट सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। Now moving on towards the Marxian model. As far as the Marxian model is concerned, this is the theory part, but before going on to the theory I want to discuss with you a little bit about the background of the Marxian model. Actually the Marxian model is basically, it has been taken from a book that has been written by him, that is the Das Kapital. Das Kapital is the book that has been written by Marx, and he has and it has been published in 3 volumes. ये 3 volumes में published हुई है, and only the first volume of this book, जो इस book की सबसे पहली वॉल्यूम थी, दैट हैज बीन, वो कब आई थी, दैट वाज इन 1867। वो सिर्फ वही थी जो मार्क्स के सामने जो है पब्लिश हुई थी। बाकी की जो 2 वॉल्यूम्स है दैट हैज बीन पब्लिश्ड इन फ्रंट ऑफ मार्क्स, वो मार्क्स के सामने जो है पब्लिश नहीं हुई थी। दे हैड बीन पब्लिश्ड, बट दे हैड बीन पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स की लाइफ में जो मतलब उसके सामने जो बुक उसकी पब्लिश हुई थी, दैट वाज इन 1867, एंड दैट वाज ओनली द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द डास कैपिटल। एंड इन डास कैपिटल व्हाट ही हैज डिस्कस्ड अबाउट, he has discussed about numerous theories. Marx has discussed about numerous theories, and basically those theories that he has discussed in Das Kapital are related to your political economy. वो किसके साथ related है, वो political economy के साथ related है।
अब अगर आपको याद हो तो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है दैट वाज द इनिशियल ब्रांच फ्रॉम विच वी हैड डिराइव्ड इकोनॉमिक्स एज एन इंडिविजुअल डिसिप्लिन। एक ये जो आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी है दिस वाज द मेन कोर्स, यही मेन कोर्स था जहां से इकोनॉमिक्स को जो है डिराइव किया गया है, जहां से इकोनॉमिक्स को एक इंडिविजुअल साइंस के रूप में एडम स्मिथ ने निकाला था एंड इसको कहा था कि वी नीड टू स्टडी इट एज एन डिफरेंटली, एज ए डिफरेंट डिसिप्लिन, हमें इसको पढ़ने की जरूरत है। सो इसीलिए ये जो है यहाँ पे आई थी। नाउ एज फार एज द मार्क्सियन कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉडल जो उसने इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल हमें दिया है, अगर हम उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में व्हाट वी कैन से कि इस मॉडल की मोटिवेशन जो है वो मार्क्स को कहाँ से मिली, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द हैगेलियंस कॉन्सेप्ट। सॉरी, वो क्या किया था, वो ना हैगल की जो फिलॉसफी है, हैगल की फिलॉसफी को फॉलो किया था ना। हैगल की फिलॉसफी क्या थी, हैगल ने क्या कहा था, हैगल वाज एन एक्चुअली ही वाज एन पॉलिटिशियन, मतलब हम उनको कहेंगे वो पॉलिटिक्स के जो है स्कॉलर रह चुके हैं, एज वेल एज इनका इकोनॉमिक्स में भी कॉन्ट्रीब्यूशन है नो डाउट, बट बेसिकली ही इज फ्रॉम पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये पॉलिटिकल फिलॉसफर थे। तो इन्होंने क्या कहा था, इनका जो आइडिया था अबाउट द यू कैन से डेवलपमेंट और ग्रोथ, इनका आइडिया ये था दैट देयर मस्ट बी अ सिंथेसिस, कि हमेशा क्या होगा, एक सिंथेसिस आएगा। सिंथेसिस मींस कि एक आइडिया आएगा, सबसे पहले इनिशियली एक आइडिया डेवलप होगा, ठीक है, एंड देन क्या होगा, उसका एंटीथेसिस आएगा, ठीक है। जो भी आइडिया आया है देन उसके कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस आइडिया को फेवर नहीं करेंगे एंड उस आइडिया को क्या करेंगे, नेगेट करेंगे, मना करेंगे उसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास की एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी क्लास में 200 स्टूडेंट्स हैं। अब अगर कोई भी चीज ग्रुप में कुछ डिस्कस होता है या कुछ बात होती है या कोई एक स्टेटमेंट कोई लिखता है, तो सभी बच्चे उस स्टेटमेंट के फेवर में तो नहीं जाएंगे ना। ऑब्वियसली कुछ को लगेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, कुछ को लगेगा कि नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सो इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग दैट कुछ लोग उसके फेवर में हो जाएंगे एंड कुछ लोग उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, एंटी हो जाएंगे। तो जो लोग उसके फेवर में हो जाएंगे ना, दैट वुड बी नोन एज थीसिस, उसको हम कहते हैं थीसिस। जो इनिशियली बात आई और कुछ लोगों ने उसको फॉलो अप किया, उसको मान लिया, फेवर में आ गए, दैट इज द थीसिस, वो थीसिस है, ठीक है। और जिन लोगों ने उसको एंटी किया दे आर कॉल्ड एंटीथेसिस, उसको हम एंटीथेसिस कहेंगे। अब मार्क्स ने क्या किया, मार्क्स ने कहा कि ये जो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, वन इज द थीसिस, एक हमारे पास थीसिस है और दूसरा हमारे पास एंटीथीसिस है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, व्हेन वी हैव टू टू अप टू द ग्रोथ लेवल, अगर हमें ग्रोथ को चेक करना है देन व्हाट वी हैव टू सी, हमें क्या करना है, इन दैट केस हमें क्या देखना है, हमें इन दोनों का सिंथेसिस देखना है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये आपका थीसिस है, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट है दिस इज योर एंटीथेसिस, ये क्या है, ये एंटीथेसिस है। एंड जो आपका रिजल्ट है, जो आपका कंक्लूजन है, दैट हैड बीन टेकन, वो कहां से लेंगे आप, दैट हैड बीन टेकन फ्रॉम सिंथेसिस, वो आपका सिंथेसिस होगा कि जो भी वैल्यू, जो भी कंक्लूजन आपके थीसिस एंड एंटीथेसिस के बाद आएगी, दैट हैज बीन प्रेजेंटेड, उसको प्रेजेंट किया जाएगा एंड उसकी कंक्लूजन्स ड्रॉ की जाएंगी एंड वो कंक्लूजन जो है दैट विल शो यू अ सिंथेसिस, वो आपको एक सिंथेसिस बताएंगी एंड सिंथेसिस जो है दैट इज द आइडिया पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड वही जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल जो आपके सामने बन के आएगा, ठीक है। सो यही चीज यहाँ पे जो मार्क्स है इन्होंने डिस्कस की है, प्लस मार्क्स ने जो है सबसे ज्यादा रेलिवेंस जो दी है वो इन्होंने सोशल रिलेशंस को दी है, कि सोशल रिलेशंस किस तरह के सोशल रिलेशंस, इन्होंने कहा है कि जो सोशल रिलेशंस होते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है, प्रोडक्शन में सोशल रिलेशंस का क्या मतलब है, मींस द रिलेशनशिप दैट हैज बीन एनकाउंटर्ड बिटवीन योर यू कैन से हाउस होल्ड सेक्टर एज वेल एज बिजनेस सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर के बीच में जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप की बात की है इन्होंने, एंड दैट नॉट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स वाला पार्ट है उस पार्ट की बात नहीं की है, बल्कि सोशल रिलेशनशिप की बात की। सोशल रिलेशनशिप में क्या होता है कि किस तरह से जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है दैट इज पेइंग बैक, वो किस तरह से पे बैक कर रहा है हमारे किसको, अपने हाउस होल्ड सेक्टर को, किस तरह से वो पे बैक कर रहा है। तो जिस तरह से वो पे बैक कर रहा है उसको, वो उसका कंसर्न बताएगा हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, जो भी चीज वो उनको दे रहा है, रेंट, जो भी चीज वो उनको दे रहा है, सो दैट वुड बी डिटरमाइन, उसी के साथ उनका सोशल जो है रिलेशनशिप जो है दैट वुड बी क्या होगा, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्क्स ने इसी चीज की बात की है एंड मार्क्स ने यही कहा कि जो सोशल रिलेशनशिप होता है एक हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर के बीच में, वही डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है। अगर वो अच्छा होगा तभी डेवलपमेंट हो पाएगी, अदरवाइज डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। एंड देन व्हाट ही हैज टॉक्ड अबाउट स्टेशनरी स्टेज, स्टेशनरी स्टेज के बारे में इन्होंने कहा, क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि स्टेशनरी स्टेज जो है
है दैट इज एन ऑप्टिमम थिंग, वो तो आनी ही है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जिस तरह से क्लासिकल्स कहते हैं कि स्टेशनरी स्टेज आएगी, वैसी स्टेशनरी स्टेज नहीं आएगी, ठीक है। जो स्टेशनरी स्टेज आएगी उसमें क्या होगा, दैट योर प्रॉफिट रेट्स विल बी फॉलिंग, आपके जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो नो डाउट वो फॉल करेंगे, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट है, जो आपकी स्टेशनरी स्टेज आएगी उसका रिजल्टेंट जो है वो सिर्फ प्रॉफिट इंडिविजुअली नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो स्टेशनरी स्टेज जो है वो आ रही है, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करें मार्क्स के मॉडल की, तो इन्होंने कहा है कि कम्युनिज्म इज द फैक्टर, सोशलिज्म इज द फैक्टर, और यू कैन से द क्लास ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स इज द फैक्टर, वो हम आगे थ्योरी में और डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा इसमें, यही कहा कि हमारे पास स्टेशनरी स्टेट आने के लिए सिर्फ प्रॉफिट इज नॉट ओनली द फैक्टर, देयर आर अदर फैक्टर्स टू, और हमें उन फैक्टर्स के ऊपर भी जो डिस्कशन है वो करनी है। एंड प्लस इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पे, दैट इज द एक्सप्रोप्रिएटर्स आर एक्सप्रोप्रिएटेड। नाउ व्हाट आर द एक्सप्रोप्रिएटर्स आर एक्सप्रोप्रिएटेड, इस बात का क्या मतलब है, एक्सप्रोप्रिएटर्स आर एक्सप्रोप्रिएटेड का मतलब है कि चोर के घर पे चोरी होना, ठीक है। दिस फ्रेज सिंपली मीन्स चोर के घर पे चोरी होना, मीन्स एक्सप्रोप्रिएटर्स हो गए वो जिन्होंने अपने वर्कर्स के जो हक है उसको छीन लिया है, उनकी जो वेजेस है उसको अपने ऊपर ले लिया है, उसको वो उनको नहीं दे रहे हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एक्सप्रोप्रिएटर्स। एंड जब उनसे कोई चीज छीन लेगा देन इट इज कॉल्ड एक्सप्रोप्रिएटर्स आर एक्सप्रोप्रिएटेड, कि एक्सप्रोप्रिएटर्स जो है वो खुद ही एक्सप्रोप्रिएटेड हो गए, उनसे खुद ही से चीज जो है कोई छीन ली गई है। सो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ द यू कैन से कोलैप्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग से जब एक्सप्रोप्रिएटर्स से ही, जब चोरों से ही चोरों के घर से चोरी हो जाएगी, दैट इज द स्टेज ऑफ स्टेशनैरिटी, वो स्टेज जो है वो स्टेशनैरिटी है, एंड दैट विल ब्रेक डाउन कैपिटलिज्म। और यही चीज है जो कैपिटलिज्म को क्या करेगी, ब्रेक करेगी एंड कम्युनिज्म की तरफ लेके जाएगी। लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें जो है किस एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है इंपॉर्टेंस देनी है, दैट इज द सोशल, इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज इकोनॉमिक, हमें इन सभी मैटर्स को देखना है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मार्क्सियन मॉडल इन इकोनॉमिक ग्रोथ सेंस, देन वी जस्ट हैव टू लुक इनटू द इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो हमें सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स को, इसके जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, एंड हम इसके सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स जो है उनके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। Now let's talk about the dynamic laws and basic framework. अब मार्क्स ने क्या किया, कुछ लॉज दिए हैं। सबसे पहला लॉ है दैट लॉ ऑफ कैपिटलिस्टिक एक्यूमुलेशन। कैपिटलिस्टिक एक्यूमुलेशन का मतलब सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, दैट कैपिटलिस्ट का मानना ये है कि ज्यादा से ज्यादा कैपिटल को एक्यूमुलेट किया जाए, जितनी हो सके कैपिटल को क्या करना है, ऐड ऑन करना है, कैपिटल रखनी है बस। कैपिटल एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, सॉरी। कैपिटलिज्म और एक्यूमुलेशन का क्या मतलब होता है कि कैपिटल को इकट्ठा करना है, तो बस यही चीज हो रही है, कैपिटल को इकट्ठा किया जा रहा है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट लॉ यही नरेट करता है। देन कम्स योर सेकंड लॉ, इसमें बताते हैं कि फॉलिंग टेंडेंसी ऑफ प्रॉफिट रेट। अब क्या कहते हैं कि जो आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है उसमें क्या है कि जो आपका प्रॉफिट रेट है दैट हैज बीन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट, लेकिन जो प्रॉफिट रेट है दैट हैज अ टेंडेंसी टू फॉल डाउन, लेकिन वो भी जो है क्या होगा, एट सर्टेन पॉइंट पे आके बिल्कुल जीरो नहीं होगा, क्योंकि क्लासिकल्स कहते हैं कि प्रॉफिट रेट जीरो हो जाएगा, लेकिन मार्क्स कहते हैं कि प्रॉफिट रेट जो है वो जीरो नहीं होगा, लेकिन येस इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉल, लेकिन क्या हो जाएगा, ये फॉल हो जाएगा। और अगर आपका प्रॉफिट रेट जो है वो फॉल हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन, देन इट विल लीड्स टुवर्ड्स अ ब्रेकडाउन ऑफ योर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो जो आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, वो कोलैप्स हो जाएगी। देन कम्स द थर्ड लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल। द लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल में क्या कहते हैं, इसमें इन्होंने कहा है कि जो भी कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल है, मींस होल्डिंग ऑफ कैपिटल, कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल मींस होल्डिंग ऑफ कैपिटल, और एंडोमेंट ऑफ कैपिटल मींस किसके पास है, कंसंट्रेशन मींस किसके पास कैपिटल है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें मार्क्स ने कहा कि जब हम कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो हम इकोनॉमी में देखते हैं कि सिर्फ कुछ ही है जो हाई ग्रेड आपको बिजनेसमैन मिलेंगे, ठीक है, लाइक बिरलाज, टाटाज, ठीक है, अंबानीज, ये कुछ नाम है गिने चुने जिनको आप जानते हैं, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, है ना। तो मतलब इसका क्या मतलब है कि कुछ जो है ऐसे लोग हैं जो मोनोपोलीज को एंजॉय कर रहे हैं हायर लेवल पे, और वही कुछ लोग हैं जिनके पास एक्चुअल में कैपिटल है, सॉरी।
तो वही कुछ लोग हैं जिनके पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल है, जो कैपिटल को होल्ड करते हैं। और जब कुछ लोगों के पास कैपिटल होती है तो वो क्या करते हैं, वो जो बाकी स्मॉल फार्मर्स होते हैं या जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे विल थ्रो देम आउट, वो उनको बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, आउट ऑफ द मार्केट। बाहर फेंकने का मतलब है मार्केट से बाहर निकाल देते हैं, एंड दे विल एंजॉय द मोनोपोली, और वो खुद क्या करते हैं, मोनोपोली को एंजॉय करते हैं, ठीक है। ऑन व्हाट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल, किस बेसिस पे, कैपिटल की कंसंट्रेशन के बेसिस पे, ठीक है। देन कम्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब थर्ड पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि जब कंसंट्रेशन ऑफ जो कैपिटल है वो कुछ लोगों के हाथ में होगी और वो बाकियों को आउट ऑफ द इकोनॉमी कर देंगे, ठीक है, तो माइनॉरिटी कहाँ पे आ गई, माइनॉरिटी आ गई आपकी कंसंट्रेशन ऑफ होल्डिंग में। जो कंसंट्रेशन ऑफ होल्डिंग की बात करें, यहाँ पे माइनॉरिटी है, लेकिन जो जिन लोगों को उन्होंने क्या किया, बैकलॉग कर दिया, जिन लोगों को उन्होंने वापस भेज दिया, वो लोग क्या है, वो लोग मेजोरिटी में, वो लोग बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, पॉपुलराइजेशन होने शुरू हो जाएगी। पॉपुलराइजेशन का मतलब क्या होता है, पॉपुलराइजेशन का मतलब है कि उनको एक्सप्लॉइटेट करना जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो एक्सप्लॉइटेशन जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि अब वो मोनोपोली एंजॉय कर रहे हैं, तो नाउ दे कैन डू वट एवर दे वांट टू डू, तो वो कुछ भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो दे विल लीड टुवर्ड्स द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास, और यू कैन से लेबरिंग क्लास, की वो एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड पॉपुलराइजेशन। अब जब एक्सप्लॉइटेशन होगी तो आफ्टर सम टाइम व्हाट इज हैपनिंग, कि होगा क्या, एक्सप्लॉइटेशन किस तरह से होगी, एक्सप्लॉइटेशन करने का मतलब है दैट दे विल यूज, क्योंकि अब टेक्निक्स का जमाना है, टेक्नोलॉजी एडवांस आ चुकी है, तो वो क्या करेंगे, वो टेक्निक्स यूज करेंगे ऐसी जो कि कैसी होंगी, लेबर सेविंग टेक्निक्स होंगी, ठीक है, क्या होंगी, लेबर सेविंग्स टेक्निक होगी। अब लेबर सेविंग्स टेक्निक अगर आती है तो लेबर सेविंग टेक्निक से होगा क्या, कि जो आपकी लेबर है व्हाट विल हैपन, कि टेक्निक कौन सी है, लेबर सेविंग, तो लेबर क्या हो जाएगी, दैट विल लेफ्ट अनएम्प्लॉयड, तो लेबर कैसी आ जाएगी आपकी, अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। एंड ये जो लेबर आपकी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड होती है किसकी वजह से, ड्यू टू व्हाट यू कैन से, ड्यू टू योर पॉपुलराइजेशन, जो आपकी लेबर अनएम्प्लॉयड हो रही है, दिस वुड बी नोन अकॉर्डिंग टू मार्क्स एज, इसको मार्क्स ने क्या नाम दिया है, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर। क्या नाम दिया है इसको, दैट इज इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी, IRA, ठीक है, IRAL, ये नाम दिया है इसको। IRAL का क्या मतलब है, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, कि इंडस्ट्री की वो आर्मी ऑफ लेबर जो कि रिजर्व रखी गई है। रिजर्व रखने का मतलब है दैट हैज बीन केप्ट अनएम्प्लॉयड, जिसको अनएम्प्लॉयड कर दिया गया है इंडस्ट्री से, लेकिन हाँ इफ नीडेड तो दे कैन कॉल देम बैक, वो उनको वापस बुला सकते हैं, इसीलिए इसको रिजर्व के नाम से रखा गया। बट एक्चुअली दे आर द अनएम्प्लॉयड पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर, बट एक्चुअली में क्या है, ये वो अनएम्प्लॉयड लोग हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के, जिनको की इंडस्ट्री ने क्या किया है, ड्यू टू द मोर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्होंने क्या किया है, इसको यहाँ से निकाल दिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट बेसिक फ्रेमवर्क की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दिस वाज द मॉडल दैट हैज बीन गिवन बाय, यू कैन से, मार्क्स। तो मार्क्स ने क्या कहा, मार्क्स ने जैसे मैंने आपको कहा कि हैगेलियन कॉन्सेप्ट के ऊपर, हैगेलियन फ्रेमवर्क के ऊपर, हैगेलियन फिलोसफी के ऊपर चले हैं ये। तो इनका मानना था कि इकोनॉमी में दो तरह की क्लासेस होती हैं, दैट इज हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, एंड हैव नॉट्स वो होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा इवेंचुअली, किस तरह से कैपिटलिज्म को अगर कोलैप्स करना है, तो कैपिटलिज्म को कोलैप्स करने के लिए देयर वुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट, एक जो कैपिटलिस्ट क्लास है, इफ यू वांट टू कोलैप्स दैट, और वो जो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट है ये किस तरह से हटेगा, जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब रिवोल्यूशन आएगा हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में। एंड होगा क्या, कि जो आपके हैव नॉट्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो क्या है, मेजॉरिटी में है, देन व्हाट दे विल डू, दे विल मेक देयर चेंज, वो अपनी चेंज बना लेंगे, एंड चेंज बना के वो रेवोल्यूशन कर देंगे अगेंस्ट दी हैव्स। हैव्स के अगेंस्ट जो है क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, रिवोल्यूशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हैव्स हैं उनके प्रॉफिट रेट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि वर्कर्स की यूनियंस बन जाएंगी, वो काम पे नहीं आएंगे, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री से आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा, तो रेट ऑफ प्रॉफिट जो है दैट विल फॉल डाउन, वो फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो यहां से ही चेंज जो है वो शुरू होती है। एंड हियर्स अ टर्म क्लैरियन कॉल। व्हाट इज दिस क्लैरियन कॉल, क्लैरियन कॉल क्या होता है, क्लैरियन कॉल मींस अ कॉल विद अ स्ट्रेंथ, जब हम एक इस तरह की आवाज लगाते हैं जिसमें वी आर ट्राइंग टू यूनाइट पीपल, जब हम लोगों को यूनाइट करने की एक कॉल लगाते हैं, एक आवाज लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ क्लैरियन कॉल, उसको हम क्लैरियन कॉल कहते हैं,
ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि क्लास कंफ्लिक्ट हो जाता है हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में, एंड जब हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में क्लास कंफ्लिक्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जीत किसकी होती है, जो मेजोरिटी में लोग हैं, ठीक है, उनकी जीत होती है। वो अपनी चेंज बना के एकदम, उनके लिए कॉल होती है, उनको बुलाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, पूरे वर्ल्ड में से जितने भी एक्सप्लॉइटेड लेबरर्स एंड वर्कर्स होते हैं उनके पास, क्योंकि अब खोने के लिए तो कुछ रहा नहीं होता है, सब कुछ तो वो खो चुके होते हैं, उनके पास कुछ ऐसी चीज है नहीं, सो दे विल बी यूनाइटेड टुगेदर, वो इकट्ठे हो जाएंगे एंड दे विल पोज अ रेवोल्यूशन, और क्या करेंगे, एक रेवोल्यूशन, एक रिवोल्ट पोज कर देंगे अगेंस्ट द हैव्स के अगेंस्ट में, ठीक है। दे आर कॉल्ड द एक्सप्रोप्रिएटर्स, जो एक्सप्रोप्रिएटर्स हैं उनके अगेंस्ट वो क्या कर देंगे, वो कन्फ्रंट्रेशन कर देंगे, एंड दैट कन्फ्रंट्रेशन विल लीड टू द फाइनल डेथ ऑफ द कैपिटलिस्टिक सोसाइटी और कैपिटलिस्टिक सिस्टम। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड एक न्यू जो है इरा जो है वो इमर्ज हो जाएगा, एंड दैट न्यू इरा ऑफ इमर्जेंस इज नोन एज योर सोशलिज्म। तो वो जो न्यू ईरा, जो प्रोसेस ऑफ चेंज से जो न्यू ईरा हमारे पास आएगा, दैट इज द सोशलिस्ट सोसाइटी, और यू कैन से कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो हमारे पास जो है इमर्ज हो जाएगी आफ्टर दी, यू कैन से कोलैप्स ऑफ योर कैपिटलिस्टिक सिस्टम। अब मार्क्स ने इसको एक्सप्लेन कैसे किया, इन्होंने कहा कि जो कमोडिटी की वैल्यू होती है दैट हैज बीन डिनोटेड बाय डब्ल्यू, उसको क्या लिया है इन्होंने, उसको डब्ल्यू लिया है, एंड W जो है, जो वैल्यू है कमोडिटी की, दैट इज द सम टोटल ऑफ 3 थिंग्स, वो 3 चीजों से बनी है, पहला है C, दूसरा है Q एंड तीसरा है S। नाउ व्हाट इज C? C इज योर कांस्टेंट कैपिटल। कांस्टेंट कैपिटल का मतलब होता है जो फिक्स्ड कैपिटल आप लगाते हैं अपनी इंडस्ट्री में, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट कैपिटल। देन कम्स वेरिएबल कैपिटल। वेरिएबल कैपिटल क्या होती है, दैट इज जो एडिशनल आप कैपिटल लगा रहे हैं, ठीक है। अब एडिशनल कैपिटल यहाँ पे इन्होंने लिया है, जो हम वेजेस पे कर रहे हैं लेबर को, वो कैसे, अब आप बोलोगे कि वेजेस की बात हो रही है तो वेजेस कैपिटल में कैसे आया, क्यों, क्योंकि मनी इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल में वी विल इंक्लूड व्हाट, हम कैपिटल में मशीनरी को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है, और हम उसके साथ साथ में मनी को भी इंक्लूड करते हैं। पैसा जो है दैट हैज आल्सो बीन नोन एज कैपिटल, उसको भी हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो वो पैसा जो हम किसको दे रहे हैं, लेबर्स को दे रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, दैट हैज बीन नोन एज, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वेरिएबल कैपिटल। एंड जब हम बात करेंगे अपनी मशीन्स की, तो दैट हैज बीन नोन एज योर फिक्स्ड कैपिटल, और यू कैन से कांस्टेंट कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे इस मॉडल में इसको डिनोट किया गया है सी के साथ, फिक्स्ड कैपिटल को, एंड जो आपकी वेरिएबल कैपिटल है उसको डिनोट किया गया है यहाँ पे मॉडल में क्यू के साथ, ठीक है। एंड देन कम्स एस, एंड व्हाट इज एस? एस इज योर सरप्लस वैल्यू। एस क्या है? ये आपकी सरप्लस वैल्यू है। सरप्लस वैल्यू जो है ऐसी वैल्यू है दैट हैज बीन अर्नड बाय लेबर, ठीक है। जो कमाई तो किसके द्वारा जाती है, लेबर के द्वारा कमाई जाती है, लेबर अर्न करता है उसको, ठीक है, लेकिन वो किसके पॉकेट्स को फिलअप करती है, वो पॉकेट्स को फिलअप करती है एंटरप्रेन्योर के, ठीक है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो ओनर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो ओनर्स होते हैं बिजनेस के, उनके पॉकेट्स में जाती है, दैट इज नोन एज योर सरप्लस वैल्यू, वो है आपकी ये सरप्लस वैल्यू, ठीक है। अब सरप्लस वैल्यू को थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं यहाँ पे। सपोज क्या हो रहा है कि कुछ काम है, ठीक है, वर्कर्स को हमने काम दिया है, एंड वर्कर्स की कैपेसिटी जो है 1 डे की काम करने की है 8 आवर्स, ठीक है। 8 आवर्स इज द कैपेसिटी ऑफ अ वर्कर टू वर्क। अब लेकिन जो काम है, जो कमोडिटीज को प्रोड्यूस करनी है, वो कमोडिटी जो है दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन विद इन 4 आवर्स, उसके लिए सिर्फ 4 घंटे चाहिए पर डे के, और वो कमोडिटी जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन वर्कर कितना टाइम दे रहा है, 8 आवर्स, और 4 आवर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब जो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड है जो वो दे रहा है, उसमें से हम माइनस करेंगे, वी आर लेफ्ट विद 4 आवर्स। तो ये जो 4 आवर्स है, ये प्रोड्यूसर जो है क्या कर रहा है, इसका जो प्रॉफिट आएगा, नेक्स्ट 4 घंटों का जो प्रॉफिट आएगा वो प्रोड्यूसर के पॉकेट में जाएगा, ठीक है। वो हमारे किसको नहीं मिलेगा, हमारे लेबर को नहीं मिलेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सरप्लस व्हिच इज एक्सप्रोप्रिएटेड बाय कैपिटलिस्ट। जो क्या कर दिया, कैपिटलिस्ट ने उससे छीन लिया। था किसका वो, हक किसका था उसके ऊपर, उसके ऊपर लेबर का हक था, क्योंकि वो 4 घंटे एडिशनल दे के उस चीज को प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन जो एडिशनल चीज उसने प्रोड्यूस की, उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयर है, वो किसके पास जाएगा, वो सारा का सारा जाएगा कैपिटलिस्ट के पास। तो यही है सरप्लस वैल्यू, दिस इज द सरप्लस वैल्यू एंड हाउ इट इज जनरेटेड। नाउ यू आर क्लियर विद इट, आई थिंक। Now moving on to the next part, अब इसको थोड़ा इक्वेशनली समझ लेते हैं। We know, हमने क्या कहा कि जो हमारे पास commodity है that has been what, W, and that is equal to C plus Q plus S। वैल्यू ऑफ commodity जो है C plus Q plus S के बराबर होगी, ठीक है। अब आपको पता है कि C क्या है, that is the constant capital, Q is your variable capital and S is your surplus value। Now हमने यहाँ पे एक और additional variable ले लिया, that is the X variable। अब ये X variable क्या है, that is used to represent the rate of surplus value। हमने क्या कहा कि X जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सरप्लस वैल्यू नहीं, उसका रेट,
ठीक है, सिंपल सरप्लस वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू बोल रहे हैं। रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो वो रेट हमें निकालना पड़ेगा और उसको डिनोट किससे करना है हमने, x के साथ, और यू कैन से द रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, जो सरप्लस वैल्यू का रेट होगा दैट हैज बीन नोन एज योर रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, उसी को हम रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन भी कहेंगे। नाउ व्हाट इज दैट इज x इज इक्वल्स टू s अपॉन q। तो यहाँ पे आपके पास जो रेट आता है दैट इज x इज इक्वल्स टू s अपॉन q। तो s अपॉन q का क्या मतलब है कि जो भी हमारी सरप्लस वैल्यू है हमने क्या किया, उसको फिक्स्ड कैपिटल के साथ डिवाइड कर दिया। तो जब हमने उसको फिक्स्ड कैपिटल के साथ डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट द रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू और यू कैन से द रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन विल बी कैलकुलेटेड। उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। नाउ कम्स द रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू आ गया, अब रेट ऑफ प्रॉफिट देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रॉफिट, तो एज मार्क्सियन मॉडल रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू योर सरप्लस वैल्यू डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कैपिटल एज वेल एज योर, कौन सी कैपिटल है, वेरिएबल कैपिटल। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या कहा हमने कि यहाँ पे जो है प्रॉफिट रेट जो है दैट हैज बीन डिटरमाइंड। अगर हमने प्रॉफिट रेट को डिटरमाइन करना है तो वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं हम, दैट इज इक्वल्स टू योर सरप्लस वैल्यू व्हेन सरप्लस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय योर, यू कैन से वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड। दोनों के साथ आपने उसको क्या करना है, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड, दोनों ही कैपिटल्स को आपको कंसीडर करना है और दोनों के साथ आपको उसको डिवाइड करना है, देन यू विल गेट। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर बाय q, दोनों चीजों को q से डिवाइड करेंगे, देन व्हाट वी विल गेट s अपॉन q होल अपॉन q प्लस c अपॉन q। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इस तरह से, s अपॉन q जो है आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब q अपॉन q आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, इन स्पाइट ऑफ दिस वी आर लेफ्ट विद 1, हमारे पास यहाँ 1 बच जाएगा एंड ये आ जाएगा s अपॉन q एंड नीचे आ जाएगा c अपॉन q और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, नाउ अब आपको पता है दैट व्हाट इज योर x क्या है, x है आपका रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड x की वैल्यू क्या है, दैट इज s अपॉन q। रिमेंबर दिस, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, s अपॉन q एंड एक और वेरिएबल हमने ले लिया c अपॉन q जो था हमारे पास, उसको हमने j के बराबर एज्यूम कर लिया। व्हाट वी विल टेक इट एज j, हमने इसको j के बराबर जो एज्यूम कर लिया। अपनी इक्वेशन को सिंपलर बनाने के लिए हमने इसको एक टर्म के साथ डिनोट कर दिया c अपॉन q को, दैट इज j। एंड व्हाट इज दिस, j क्या है, अब आप इसको क्या कहेंगे, दिस इज द ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल। इसको क्या कहेंगे हम, दिस इज द ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल। आप इसको एक टर्मिनोलॉजी जो मार्क्स ने यहाँ पे दी है j के लिए, दैट इज द ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब इस इक्वेशन को लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, s अपॉन q के बजाय हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा एंड c अपॉन q की जगह हमारे पास j आ जाएगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x अगर हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आएगी p टाइम्स 1 प्लस j इज इक्वल्स टू x। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें उसको डिफरेंशिएट करना है। व्हेन वी विल डिफरेंशिएट इट, इस तरह से हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन रूल विल बी यूज्ड। हमने क्या करना है, क्वेश्चन रूल को यहाँ पे यूज करना है। dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू, ये आपका पास फर्स्ट फंक्शन आ गया। ठीक है, जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर आ गया यहाँ पे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ योर न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर into differentiation of your denominator whole upon the square of denominator. This is the question rule जो आपने मैथ्स में पढ़ा है, वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे यू विल गेट अ वैल्यू लाइक दिस, 1 अपॉन 1 प्लस j, ये वैल्यू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड अंदर आपके पास क्या रहेगा ब्रैकेट में, dx अपॉन dt माइनस p टाइम्स dj अपॉन dt। नाउ व्हाट इज दिस, अब ये जो आपके पास यहाँ पे dx अपॉन dt है, ये क्या वैल्यू है, दिस इज द रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। ये आपको बता रहा है एज पर टाइम व्हाट इज द रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, की रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन क्या होगा। एंड जो p टाइम्स dj अपॉन dt है, ये आपको बता रहा है व्हाट इज योर अमाउंट ऑफ कैपिटल। what it is explaining you the amount of capital, ये बता रहा है amount of capital। अब amount of capital अगर आप यहाँ पे देखें, j जो है that has been इन द डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर में है, दैट मीन्स j और p का कैसा रिलेशनशिप है, दैट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप है एंड x एंड p का कैसा रिलेशनशिप है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर x में चेंज आती है, ठीक है, अगर x बढ़ता है तो जो आपका प्रॉफिट है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड अगर आपका x जो है वो फॉल करता है तो आपका प्रॉफिट जो है वो भी क्या हो जाएगा, फॉल करेगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ उल्टा केस हो जाएगा। इसके साथ क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास आपका जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, अगर आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल बढ़ता है
अमाउंट ऑफ कैपिटल में अगर इंक्रीज आती है तो आपका प्रॉफिट रेट जो है दैट विल बी फॉलिंग, वो फॉल कर जाएगा, ठीक है। एंड यही अगर आपका जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है अगर ये फॉल करता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉल करता है तो आपका प्रॉफिट रेट जो है दैट विल बी इंक्रीजिंग, वो जो है क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पे पढ़नी है दैट इफ dx upon dt is greater than your p times dj upon dt, तो आपके पास प्रॉफिट रेट जो है दैट विल इंक्रीज, तो आपका प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड वहीं अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन बनता है, ठीक है, मीन्स आपका dj upon dt p टाइम्स dj upon dt जो है इफ दैट इज ग्रेटर, अगर वो बड़ा होता है dx upon dt से, मीन्स एक्सप्लॉइटेशन कम हो रही है एंड कैपिटल ज्यादा आप जो है उसमें चेंज आ रहा है अमाउंट ऑफ कैपिटल में, तो आपका प्रॉफिट रेट जो है दैट विल फॉल, वो आपका क्या हो जाएगा, वो फॉल हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज का आपको, और अगर ये दोनों चीजें इक्वल रहती हैं देन वी आर इनडिफरेंट, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, इनडिफरेंट हो जाएंगे, मीन्स प्रॉफिट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो आपका प्रॉफिट जो है इन दैट स्टेज इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, वो कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मार्क्सियन मॉडल। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये, किसी भी पार्ट पे अगर कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी, ठीक है। थैंक यू क्लास।